Hello children, so welcome back to my channel Maths Chronicles. Today I am here to explain you the concepts behind these eye defects, that is hypermetropia, myopia and presbyopia. So in today's lecture particularly we will talk about only myopia, and the other name of myopia is, the casual name is short-sightedness. See, so today we are going to talk about myopia. Today we are going to talk about myopia, which we also know by the name of short-sightedness. Short-sightedness. Now, as the name suggests, children, suggests to you that since the person has become short-sighted due to this defect, so the person will not be able to see an object beyond a certain limit. Let us say that limit in our example is 200 centimeters, that is, the person is not able to see clearly beyond 200 centimeters. Understand these words, what am I speaking to you? Clearly beyond 200 centimeters. 200 centimeters, for example. Or the other example could come in this manner, that a child has problem in viewing the board if he sits on one of the back benches in the classroom. What defect he must be suffering from, what kind of lens the doctor could prescribe, or the ophthalmologist, optician could prescribe him, and what could be the power of the lens. So these three are the famous categories of questions which can be formed on myopia, right? No other category than these three is possible. So you try to understand actually first how this defect works. तो पहले हम देखेंगे डिफेक्ट काम कैसे करता है, उसके बाद उसके बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि हाउ इट कैन बी क्योर तो नहीं कह सकते, बट हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड, मतलब फॉर द टाइम बीइंग टिल द टाइम यू आर पुटिंग द स्पेक्स इट कैन बी रेक्टिफाइड. तो कैसे होता है ये, कैसे डिफेक्ट डेवलप होता है आँखों में, क्या होता है हमारे लेंस के साथ, देखते हैं, राइट. So try to understand here, the focus now is shifted to the near point, but see, since I can able to move the object to and fro on the principal axis, that is, this means the object is nearer, this position means, and this position means the object is very far away from the eyes of the observer, and the observer here right now has a perfect vision. Why? Because the eye lens will be, the lens of the eyes will be relaxed by the ciliary muscles. You can see the lens is getting thinner and thinner, causing the increase in the focal length. So now here you can see that the object is lying very far away from the object, and I am causing the lens to become thinner and thinner by shifting the focus from the near point to the far point. For the far away situated objects, the focus, the length, the principal focus will shift because the lens is flexible, and you can see the focal length increases, and here is the final value of the focal length, right. So let me properly adjust the window first. Okay, now see. So the person has very, you can say, proper vision, or he is not suffering from any kind, he or she is not suffering from any kind of eye defect so far. But now as I suddenly click on this near-sighted checkbox, see what happens. Again I am pressing it from, I am switching it back from the normal vision to the near-sighted vision. That is, see what happens. The lens grows thick, right? The lens grows thick, and when the lens grows thick, you can see what happens. The focus shifts, it goes ahead of the retina, that is, the person will be able to see the objects, but the vision will be blurry. Vision uska kya hoga, dhundla ho jayega. So what happens, children, there is a decrease in the focal length. You can see the intersection of these rays, these three rays, they are intersecting on the principal axis just before the retina, that is, there is a decline in the focal length, and when there is a decline in the focal length, जब focal length कम होती है, see, by this inverse relationship, when focal length decreases, power rises in the opposite ratio. This is the meaning of inverse variation. Power is inversely proportional to the
focal length. तो यहाँ पे क्या हुआ, see what is happening here, the lens is getting thicker due to which the focal length decreases as the radius of curvature decreases, क्योंकि there is more curvature, bend ज़्यादा हो गया लेंस, यहाँ पे बेंडिंग कम थी लेंस की, the lens was thinner. और देखो जैसे ही वो पर्सन डिफेक्ट वाला होता है, उसकी आंखों में डिफेक्ट आ जाता है मायोपिया वाला, तो द लेंस ग्रोस थिकर कॉजिंग the curvature to the radius of the curvature to decrease, due to which the focal length will decrease because focal length is half of the radius of curvature. तो radius of curvature कम हुआ तो focal length का भी कम होना निश्चित है. It is obvious that the focal length will decline, and when the focal length will fall, the power will increase. So actually what is the problem with myopic person is that a myopic eye एक मायोपिक आई में होता क्या है, इन अ मायोपिक आई द पावर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस, द पावर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस. विच लेंस? आर बायोलॉजिकल लेंस, जो हमें भगवान ने दिया है, गिफ्ट किया है, ये वाला. दिस इज आर बायोलॉजिकल लेंस विच इज इनसाइड आर आई बॉल्स, राइट. तो इस लेंस की पावर बड़ी हुई होती है मायोपिया में. दिस इज द मेन कॉज. इंक्रीज पावर हो जाती है, दैट इज़ हो सकता है कैसे हो गई पावर, कैसे बढ़ गई, थिक हो गया लेंस, थिक होने से पावर बढ़ गई क्योंकि फोकल लेंथ कम हो गई. तो क्यों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बिकॉज द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज फोकल लेंथ डिक्रीजेस. यू कैन सी इंटरसेक्शन पहले ही हो रहा है, जो फोकस है वो पहले ही मिल रहा है हमें रेटिना से. Focal length decreases because of decrease in radius of curvature. Radius of curvature as the lens grows thicker. As the lens grows thicker. तो हो सकता है कि भाई लेंस ने अपनी जो थिन होने की काबिलियत है वो खो दी, मतलब ये रिलैक्स हो रहा था पहले तो एक परफेक्ट आई में, लेकिन एक मायोपिक आई में ये रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, ये थिक ही रह रहा है. इट इज़ थिक, it has more radius, it has more curvature, more bend, it is more bent. इसकी बेंडिंग ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ कम होगी, तो पावर ज़्यादा होगी. ठीक, तो पावर ज़्यादा रहती है. द मेन पॉइंट, द कैच ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट इज़ दैट पावर रिमेन्स लार्जर. अब इस पावर को हमें कम करना है, तो प्लस में बहुत ज़्यादा रहेगी ये पावर, राइट. हमें इस पावर को कम करना है, तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए आगे हमारी आँखों के जो इसकी पावर को कम कर सके. तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी तो है ही तुम्हारे पास, विच इज़ द पावर ऑफ दिस बायोलॉजिकल लेंस विच इज़ ऑलरेडी हाई ड्यू टू मायोपिया एज आई हैव स्टेटेड. अब इस पावर को कम करने के लिए तुम्हें एक ऐसा लेंस चाहिए चिल्ड्रन जो कि इसका अपोजिट काम करे. दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंसेज आर कन्वर्जिंग इन नेचर. वो तो रेस को मिलाते हैं, वो तो रिफ्रैक्टेड रेस को एक जगह पे मिलाएंगे, राइट. सो व्हाट अबाउट एन आइडिया ऑफ प्लेसिंग अ कॉन्केव लेंस. वाई? बिकॉज एक कॉन्केव लेंस ही एक ऐसा लेंस है जो कि क्या करेगा, रेस को डाइवर्ज करेगा, या फिर पावर को हमारे बायोलॉजिकल लेंस की साथ मिलकर क्या कर देगा, पावर को कम कर देगा. बिकॉज फ्रॉम दिस पॉजिटिव क्वांटिटी सम नेगेटिव विल बी रिमूव्ड एंड हेंस द इफेक्टिव पावर ऑफ आवर आईज विल बी लेसर देन द सिंगल वैल्यू ऑफ आवर पावर ऑफ द बायोलॉजिकल लेंस. ठीक, तो हमारी जो कंबाइंड पावर आएगी लेंस की और हमारे बायोलॉजिकल लेंस की, वो केवल हमारी बायोलॉजिकल लेंस की पावर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. हमारा पर्पस क्या है, पावर को कम करना. पावर बढ़ी हुई है क्योंकि लेंस थिकर है, वो खींच नहीं पा रहा है, या सेलेरी मसल्स उसे खींच नहीं पा रही हैं, इसलिए हमें एक बाहर से एक्सटर्नली हमें एक लेंस लगाना ही पड़ता है. तो अब होगा क्या यहाँ पे, लेट अस ट्राई टू फर्दर सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन हियर. तो नियर साइटेड हैं, जैसे ही नियर साइटेड किया मैंने, तो यू मस्ट हैव सीन यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ गया. तो हाउ दिस
will be corrected. अगर मैंने इस पे check लिखा या check इस पर press किया तो you can see immediately a concave lens will be placed ahead of our eyes. Now see what is happening here. अभी unchecked था, check किया. See the green and the blue here, this region. See this region, my cursor is revolving over. मेरे जो कर्सर है वो इस रीजन के ऊपर घूम रहा है, तो इस रीजन को देखो यहाँ पर. सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो द ब्लू रेज आर नाउ they are moving away in the form of green rays after coming from the concave lens. तो कॉन्केव लेंस से आने के बाद वो ज़्यादा बाहर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि कॉन्केव लेंस का नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है. डाइवर्जिंग मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद, बेंडिंग होने के बाद कॉन्केव लेंस क्या करता है, रेस को दूर फेंकता है, एक दूसरे से दूर जाती हैं रेस. दे डू नॉट कम एंड मीट रियली एट अ पॉइंट, दे कीप मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आफ्टर रिफ्रैक्शन. तो इस वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे हम समझते हैं डायग्राम बनाकर कि क्या रहा होगा. तो सी लेट अस से दिस इज़ द फार पॉइंट. मान लेते हैं ये है वो फार पॉइंट जहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश की जा रही है. बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस आउटसाइड, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस कॉन्केव लेंस बिफोर द करेक्शन, तो ये इमेज यहाँ पे बन रही थी, है ना, रेटिना से पहले बन रही थी इमेज. ठीक, तो क्या करें, व्हाट टू बी डन, हमने क्या कर दिया, पावर को कम करने के लिए हम एक डाइवर्जिंग लेंस ले आए कॉन्केव लेंस के नाम से. देन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो लाइट की रेज जो कि पहले सीधा हमारी आंखों के कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ती थी, अब वो पहले कहाँ पे गिरेंगी, पहले एक बाहर वाले लेंस पे गिरेंगी और ये थोड़ी दूर चली जाएंगी. दूर इतनी जाएंगी कि ये जब फाइनली बेंट होके आए, they converge at after refraction from the biological lens of our eyes, they converge perfectly over retina. तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा. यहाँ पर भी क्या होगा, ये रेज आ रही है, आती हुई रे पहले गई बाहर वाले लेंस पर, वहाँ से थोड़ा ये फैल गई, दूर चली गई और फिर इतनी दूर गई कि अंत में इसे कहाँ मिलना पड़ा, रेटिना पर. शायद यही रीज़न है कि जब हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आई चेकअप कराने जाते हैं तो देन ही पुट्स अ बिग फ्रेम ऑन आवर फेस, एक बड़ा सा फ्रेम लगाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एंड देन ही कीप्स चेंजिंग द आई लेंसेस. उसके पास कुछ डेफिनेट सेट्स होते हैं, तो उन सेट्स में से एक एक करके वो लेंस निकालता जाता है. उस सेट में से एक ब्रीफ केस होता है बहुत बड़ा सा, तो सेट में से निकालता जाता है और फिर हमारे आई की लेंस पर, हमारे आईज के सामने रखता जाता है उस फ्रेम पर, और हमसे पूछता है कि अब दिखा, अब आपको नहीं दिखा, अब कितना कैसा दिख रहा है, अब कैसा दिख रहा है. तो ही कंटिन्यूसली कीप्स प्रॉम्प्टिंग अस कि भाई अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. तो एक्चुअली में वो कर क्या रहा है, एक्सपेरिमेंट ही कर रहा है. ही इज़ एक्सपेरिमेंटिंग कि भाई कब इमेज कहाँ बन जाए, रेटिना पर परफेक्टली, और पर्सन को दूर वाली चीज़ें भी आसानी से दिख जाएँ. अब देखो ये हो क्या रहा है, रेज ये रही, ये डाइवर्ज हो रही है. अब जब ये डाइवर्ज होती हैं तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट तो दूर ही है, तो हमें क्लियर कैसे दिखा, हुआ क्या यहाँ पे. एक्चुअली लेंस लगा के ऐसा क्या किया जा रहा है ताकि वो इमेज क्लियरली उस ऑब्जेक्ट की हमें नज़र आती है. क्यों, क्योंकि वो रेटिना पे बन जाती है. उसके लिए हमें सबसे पहले बिहेवियर देखना पड़ेगा. एक रिविजिट कर लेते हैं कॉन्केव लेंसेज कैसे बिहेव करते हैं. तो सी हाउ द कॉन्केव लेंसेज बिहेव. लेट अस से दिस इज अ कॉन्केव लेंस, मान लेते हैं ये कॉन्केव लेंस है. ये दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. दिस इज प्रिंसिपल फोकस नंबर 1, फोकस नंबर 2, f2 एंड 2f2. इन सर्टेन बुक्स यू कैन फाइंड f2, f1, है ना, f2 यहाँ पे रहेगा. दैट हार्डली मैटर्स, अभी इसके लिए इतना ही बहुत है. तो हुआ क्या है यहाँ पे कि भाई ऑब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी फार अवे. मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत दूर है. तो एक लाइट की रे ऐसी आएगी. ड्यू टू द डाइवर्जिंग नेचर ऑफ द लेंस, द रे ऑफ द लाइट विल मूव अवे. दूसरी लाइट की रे मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है. नाउ सी वेयर दे एक्चुअली मीटिंग, ये कहाँ पे मीट कर रही हैं. अगर हम इस ऊपर जाती हुई रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो यू कैन सी दे मीट एट दिस पॉइंट. सो दिस विल बी द इमेज. दिस स्मॉल एरो, लेट मी जूम इन. ये जो स्मॉल सी एरो यहाँ पे नज़र आ रही है, दिस स्मॉल एरो, दिस इज द इमेज ऑफ दिस एक्चुअल एरो, राइट.
सॉरी. So this is the image of the actual object. ये छोटी सी इमेज यहाँ पे बन रही है because the rays are appearing to meet at this point. ऐसे ही तो हम पढ़ते हैं कॉन्केव लेंस का बिहेवियर, राइट. कॉन्केव लेंस में इमेज जिस साइड होती है उसी साइड ऑब्जेक्ट होता है, या जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पे इमेज ही बनती है. दैट इज वाई द इमेजेस आर सेड टू बी इरेक्ट एंड वर्चुअल, और वर्चुअल एंड इरेक्ट. यू कैन नॉट पुल द इमेज आउट ऑन अ स्क्रीन, ऑन अ कर्टन. इमेज बाहर नहीं आ सकती, वो लेंस के अंदर ही रह जाएगी, राइट. एक वर्चुअल दुनिया में ही कैद होकर रह जाएगी, वो लेंस के बाहर कभी नहीं आ सकती. तो अब यहाँ पर भी वैसा ही होना चाहिए. यहाँ पर भी क्या होना चाहिए चिल्ड्रन? These rays, when they are produced backward in the opposite direction, they appear to meet at a point f dash. मान लेते हैं वो एक पॉइंट पे मिलती हैं जिसे f dash कहा गया. Now what f dash is? F dash is that range of the person till which he can observe all the things around us in a crystal clear manner. मान लेते हैं in our example the person is able to see clearly till 150 centimeters of range. यहाँ तक तो वो क्लियरली देख सकता है, उसके बियॉन्ड तो देख सकता है, वो अंधा थोड़ी ना हुआ है, उसके बियॉन्ड तो दिखेगा उसको, लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा, राइट. तो क्लियरली नहीं दिखेगा तो कैसा दिखेगा? ब्लड दिखेगा. तो ये एफ डैश जो पॉइंट है, दिस इज द एक्चुअली चिल्ड्रन दिस इज इमेज पॉइंट, दिस इज इमेज पॉइंट, दिस इज इमेज पॉइंट, इमेज पॉइंट. और इसी वजह से शायद यहाँ पर कई बुक्स में F2 भी लिखा रहता है, क्योंकि F2 जनरली हम इस साइड पर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, लेकिन यहाँ पे F2 यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिख जाता है किसी किसी बुक में, रेफरेंस बुक्स में यू कैन फाइंड यहाँ पर F2 यहाँ पे F1, क्योंकि F2 वाले जो पॉइंट्स होते हैं, 2 वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो जनरली इमेज के लिए होते हैं, और इमेज ही इस साइड बनती है. तो शायद मे बी ये रीज़न है कि भाई इसी साइड पर इमेज बन रही है जिस साइड ऑब्जेक्ट है, इसीलिए F2 इधर तो F2 भी इधर, राइट. तो अपने अपने तरीके हैं समझने के लिए, तो यू कैन डिवाइज योर ओन वेज टू रिमेंबर कि कहाँ पे होना चाहिए, बट दैट हार्डली मैटर्स. रहेगा तो प्रिंसिपल फोकस, चाहे 1 बोलो 2 बोलो कहीं भी बोलो. तो नाउ सी अब क्या हो रहा है कि भाई ये उस पॉइंट पे इमेज बनाता है लेंस जहाँ तक ऑब्जेक्ट वो को क्लियरली उस डिफेक्ट वाली आँख देख सकती है, या वो मायोपिक आई देख सकती है, या वो पर्सन जो कि नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस से सफ़र कर रहा है वो देख सकता है. तो हमने क्या किया, या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने क्या किया, चीटिंग की हमारे ब्रेन के साथ. द ब्रेन वॉज मेड टू बिलीव दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट लाइंग एट इन्फिनिटी और वेरी फार अवे फ्रॉम द आईज ऑफ द डिफेक्टिव पर्सन हु कैन नॉट सी जस्ट बियॉन्ड 150 सेंटीमीटर क्लियरली. तो एक ऐसा लेंस लगाकर ये धोखा दिया गया कि ऑब्जेक्ट दूर नहीं है, ऑब्जेक्ट तो तुम्हारी रेंज में ही रखा हुआ है. दैट इज ब्रेन को लगेगा कि वो यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट देख रहा है, बट एक्चुअली ब्रेन को ये धोखा दिया जा रहा है ये बिलीव करवाने के लिए कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा इतना दूर नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहीं पर ही है, तुम्हारी रेंज में है. द ऑब्जेक्ट इज विद इन योर रेंज, दैट इज जस्ट लाइंग परफेक्टली एट 150 सेंटीमीटर्स, राइट, और मे बी लेस देन दैट, बट 150 सेंटीमीटर्स तक तो वो जो मायोपिक आई वाला पर्सन है दैट ही कैन सी द ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली. Then what is happening here, I am speaking it again, the brain is bluffed into thinking that the object is not lying very far away from the eyes, but the object is lying just at the right distance till which that person can see. तो ब्रेन के साथ चीटिंग हुई यहाँ पे, ब्रेन को ये धोखा दिया गया ये बताकर कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एफ डैश पर है, बट ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट तो एफ पर है, राइट. सो दिस इज हाउ चिल्ड्रन द मैकेनिज्म एंड द करेक्शन for myopic eye, mechanism of myopic eye and the correction for the myopic eye works. So this is the correct diagram for correction, diagram for correction. तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि भाई आप draw the diagram for correcting the myopic eye, तो this diagram you need to draw, right. इतना कोई मुश्किल नहीं है, you can clearly draw this. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अ पर्सन की एक न्यूमेरिकल आता है वेरी पॉपुलर, इसी एग्जाम्पल को न्यूमेरिकल बना देते हैं. अ पर्सन कैन नॉट सी, अ पर्सन कैन नॉट सी बियॉन्ड
ये ज़्यादा थिक हो रहा है, लेट मी रिड्यूस द, कैन नॉट सी बियॉन्ड 150 सेंटीमीटर्स क्लियरली, राइट. 150, let me silence it, 150 centimeters clearly. What kind of eye defect, what, पहला point, what kind of eye defect is he suffering from? Suffering from. Second, lens क्या यूज़ किए जाएंगे करेक्शन के लिए. थर्ड, पावर क्या होगी लेंस की. इससे ज़्यादा नहीं बनता है इस चैप्टर में, यही है और उसकी कैपेसिटी भी यही है. तो अब क्या इससे सॉल्व करें. पावर निकालने के लिए चिल्ड्रन यू मस्ट लर्न, यू शुड हैव द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर्स. एंड फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, सॉरी, द फॉर्मूला गोज लाइक दिस. बाय द लेंस फॉर्मूला वी कैन राइट 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u, where v is image distance, v is image की distance, right, and u is object distance. u क्या होती है, object की distance होती है. तो where is the object? Go according to the concept here, children. Go according to the concept, you will see that the object is actually at f. Object तो यहाँ पर है, object तो यहाँ पर है, that is from the eyes the distance of the object is minus infinity. Why minus? Because due to the sign convention, all the distances from the in the negative direction of the in the left hand side direction of the y axis are taken to be negative. ये वाली सारी distances y axis की तरफ से, y axis से left की तरफ negative होती हैं, क्योंकि यहाँ पे you know that x runs in negative towards in the second and the third quadrant, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या रहता है चिल्ड्रन, पॉजिटिव रहता है. तो these distances are positive, that is negative. तो ये तो पता ही हमें कि लेंस में लेफ्ट में सब सारे मेजरमेंट नेगेटिव में लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव. अब इमेज कहाँ बन रही है, तो यू आर डन विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हो गया, अब इमेज कहाँ पे बन रही है. सही, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज यहाँ पे बन रही है, हेयर इमेज इज फॉर्म्ड हेयर, दैट इज. तो इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट की वो एफ डैश पे बनाई जा रही है. ब्रेन को चीटिंग कर रहा है, ब्रेन के साथ हम चीटिंग कर रहे हैं, ब्रेन को ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दूर नहीं है. द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम यू, फ्रॉम योर आईज, so that you will find difficult to view it clearly, but the object is located just at the right distance from your eyes, till the distance which you can see the objects clearly from or within that range. तो यहाँ पे जो v है चिल्ड्रन, isn't it 150, that is negative of 150, क्योंकि f डैश जो है वो हमारी आंखों से कितना दूर है, 150 सेंटीमीटर्स. हमने शुरू में मान लिया था कि वो डिस्टेंस है जहाँ तक वो व्यक्ति जो कि मायोपिक आई है जिसकी, वो उस डिस्टेंस तक देख सकता है, 150 सेंटीमीटर्स तक उसे दिखता है. तो वी भी कितना होगा यहाँ पर 150, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे वो लेंस बना रहा है, एफ डैश पे बना रहा है. तो लेंस इज द रूट कॉज फॉर कॉजिंग दिस यू कैन से फिनोमिना हेयर. इस फिनोमिना को होने में हमारा लेंस ही, इट इज़ द रोल प्लेयर, राइट, ये ही सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है. तो इमेज कहाँ बन रही है इस ऑब्जेक्ट की, कहाँ बनाई जा रही है, एफ डैश पर. तो हमारा ब्रेन या हमारी आइज़ ऑब्जेक्ट नहीं देख रही है, हमारी आइज़ उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख रही हैं. रिमेंबर दिस, मायोपिक आई में जब करेक्शन होता है तो हमारी आइज़ ऑब्जेक्ट को नहीं देखती हैं, हमारी आइज़ क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज को देखती हैं. शायद यही रीज़न है जब हम अपने चश्मे को निकाल के, एक मायोपिक इंसान अगर अपने चश्मे को निकाल कर दुनिया देखेगा तो दुनिया उसे थोड़ी सी बड़ी लगेगी. क्यों? क्योंकि मायोपिक आई के साथ और लेंस के साथ, कॉनकेव लेंस के साथ जब वो अपनी वर्ल्ड को देखता है तो क्योंकि वो वर्ल्ड को तो देख नहीं रहा है, वो तो इमेजेस नज़र आ रही हैं उसको सारी, राइट, ये इमेजेस हैं, इसलिए वो छोटी होती हैं. क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करता है चिल्ड्रन, कॉनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस स्मॉल साइज इमेजेस, राइट.
इसी वजह से जब वो लेंस उतारेगा, अपना चश्मा उतारेगा, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसे, या ज़मीन ऊपर नीचे थोड़ी सी होती है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी कहता है कि आप एक बार चल के देखो, थोड़ा सा आपको ज़मीन ऊपर नीचे लगेगी, 1-2 दिन एकोमोडेशन में थोड़ा टाइम लगता है, एंड देन एवरीथिंग बिकम्स बैक टू नॉर्मल, राइट। तो ये सब कुछ होता है, दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। तो हमारे केस में u कितना था चिल्ड्रन, वी रोट u एज -∞, और इमेज कहाँ बन रही है, उस f पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की f डैश पे बनती है, और f डैश कितना दूर है हमारी आंखों से, 150 सेंटीमीटर्स। इसमें लिख देते हैं सेंटीमीटर्स, वैसे मतलब तो है नहीं लिखने का। तो लेट अस टेक दिस फॉरवर्ड, दिस फॉर्मूला, सो इट विल बिकम 1/f, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, 1/v इज 1 by -150 माइनस 1/u इज इन्फिनिटी, माइनस लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 by माइनस ऊपर चला जाएगा, एंड इट विल बी 1/150 माइनस 0, and it will be minus 1/150. Now what happened to 1 upon infinity? See children, 1 upon infinity is actually 1 upon 1/0, and this 0 will take a jump and reach in the numerator, reach to the numerator. So 0/1 it will become, and 0/1 is 0. Therefore I chose to write, instead of this 1/infinity, I chose to write a 0 here. Okay? So it is very simple to understand what actually happened here. नाउ सी, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आई विल राइट, सॉरी, आई कैन फर्दर गो ऑन एंड फ्लिप ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि ये तो 1/f आया है, -1/150, हमें के चाहिए केवल f, तो आई विल फ्लिप ऑन बोथ द साइड्स, द डिनोमिनेटर्स विल बिकम द न्यूमरेटर्स एंड द न्यूमरेटर्स विल बिकम द डिनोमिनेटर्स. तो बट दिस इज इन सेंटीमीटर्स, you have to get this focal length in meters. So this is the focal length in meters. Now power can be calculated by 1/f, and here f is, minus will be taken up in the numerator. So you will remove the decimal by placing a 10. So it will be 2/3 negative, and the unit of power is diopters. So this is the correct spelling of diopter, or d, simply you can write d. So what is -2/3? -2/3 resolves to -0.666, or I can make an approximation till 2 places of decimals, diopter. So this much of power is required to bring the power of the biological lens down, so that the image can be formed perfectly at retina. तो ये चाहिए हमें पावर. बच्चे जनरली क्या करते हैं, दे लर्न दिस कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, वो एक रिलेशन ही याद कर लेते हैं मायोपिक आई के लिए, एंड फोकल लेंथ इज -v. एक्चुअली में हो भी क्या रहा है यहाँ पे, देखो फोकल लेंथ क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ अगर हम देखते हैं उस लेंस की फोकल लेंथ, इट इज़ -150 सेंटीमीटर्स, एंड व्हाट वाज 150 सेंटीमीटर्स, डिस्टेंस ऑफ द इमेज पॉइंट, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द शिफ्टेड फार पॉइंट. जो फार पॉइंट है हमारा, तो वो अब f डैश पर है, क्योंकि f डैश पर ही हम चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि f डैश पे बहुत दूर पे रखी हुई चीज़ों की इमेज क्लियरली हमें नज़र आ रही है. ठीक, तो f डैश हो गई वो रेंज, दैट इज डायरेक्टली चिल्ड्रन दे यूज दिस फार्मूला, दे डू नॉट फॉलो दीज स्टेप्स, राइट, दे डोंट फॉलो दिस, दे जस्ट क्राम इट अप एंड do the questions. That is also correct. One or the other way you have to apply the concepts here. Either you cram it up or you learn it, you understand it properly, right? So this is what children about today's lecture. It was all about myopia, and if you find this lecture really interesting and eye-opening, then for sure you can share it amongst your friends and make them learn these concepts by heart, because it is a very crucial concept with regard to your board examination, right? So if you really think that this lecture has helped you today, so you can quickly like, subscribe and share my video and help the others also, right? So thank you children, have a nice day ahead.